یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی شیعہ ہو اور اس کے اندر رافضیت نہ پائی جاتی ہو، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی سنی ہو اور اس میں ناصبیت نہ پائی جاتی ہو، الا یہ کہ اللہ کسی کو بچا لے سنی اور شیعہ دونوں میں سے۔ میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور وہ آ کے کہیں حدیثیں مار بیان نہ کرو، اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے، لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی۔ اس میں کون سی گستاخی ہو گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ تلوار اٹھاتے، جی اس زمانے میں ہم ہوتے تو ہم بھی تو صحابی ہوتے ہیں نا بھائی، اور پھر آپ سے کہیں گے وہی والی بات جو آپ کو آپ کے ابوں نے پڑھائی ہوئی ہے، علمی ابوں نے، کہ جب دو صحابہ آپس میں لڑے تو آپ نے نہیں بولنا، تو پھر ہم صحابی ہوتے اور ہم تلوار سونت لیتے تو آپ کو تو ویسے ہی نہیں بولنا چاہیے۔ پھکی اینٹی وینم الزامی جواب، ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ دوست آپ نے اس بدتمیز بد اخلاق انسان کی باتیں سنی، کس طرح یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں جو بھی سنی ہوگا وہ ناسبی ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے سامنے جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں وہ اہل سنت کی، اماموں کی ہیں، وہ بھی ناسبی ہیں۔ ناسبی کا مطلب جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ سنی نہیں ہے جو ناسبی ہو، اور آپ اس کے پچھلے آپ بیانات سن لیں 5 سال پہلے کے، کہتے ہیں سنی میں کوئی ناسبی نہیں ہے۔ ہاں وہابیوں میں تھوڑے بہت ناسبی ہیں، دیوبندیوں میں ہیں، اہل سنت جو بریلوی ہیں وہ تو 99.9% ان میں پیور سنی ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اب جناب تینوں کو ملا کے، وہابیوں کو، سنیوں کو، دیوبندیوں کو، کہ سنی دنیا میں کوئی نہیں، جو بھی سنی ہوگا وہ ناسبی ہوگا۔ اللہ کی کروڑا لعنت اس شخص پر ہوں۔ ہم الحمدللہ اہل سنت، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہماری محفلوں سے آیا ہیں اور ہماری کتابوں سے آیا ہیں، اس کی باتوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ناسبی کہے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی کروڑا اس پر لعنتیں ہیں۔ اس لیے ناسبی کہہ رہا ہے کیونکہ اس کے خلاف ٹرینڈ چلائے کہ اس کو گرفتار کرو، یہ گستاخ صحابہ ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی گستاخیاں کرتا ہے کہ قبروں سے نکل کے آئیں تو کہیں کہ حدیث عمار بیان نہ کرو، میں تب بھی بیان کروں گا۔ یہ انداز کس نے آپ کو سکھایا ہے؟ یہ طریقہ کار آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام کے خلاف تو نہیں ہو نہیں سکتے نا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی تو فرمایا اکرم اصحاب، میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کے بارے میں اس طرح کی گندی زبان استعمال نہ کرو، یہ بھی تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ بھی تو نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ پہلے تو اس نے سراسر یہ اہل سنت پر جھوٹ بولا کہ جناب کوئی بھی سنی نہیں ہوگا جو ناسبی نہ ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسے شخص پر کروڑا اللہ کی لعنتیں، فرشتوں کی لعنتیں، اور لعنت کرنے والی تمام مخلوق کی اس شخص پر لعنت ہو۔ اس نے تو صدیوں پرانے تمام محدثین، فقہا اور اماموں کے بارے میں یہ زبان استعمال کر لی، الا ماشاء اللہ، مطلب 1-2 رہ گئے، باقی ساری دنیا جو ہے وہ نعوذ باللہ ناسبی ہے۔ خود یہ رافضی ہے، یہ گستاخ صحابہ ہے، اس لیے اس پر ٹرینڈ چلائیے کہ اس کو پکڑو۔ اب یہ بڑی چلاکی کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، تو اس لیے میرے خلاف ٹرینڈ چلاتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے کے خلاف ٹرینڈ نہیں چلایا جاتا ہے، تو گستاخ صحابہ ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا گستاخ، اس لیے تیرے خلاف ٹرینڈ چلتا ہے، اس لیے تیرے خلاف لوگ بات کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ کوئی بندہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کا ادب کریں۔ کہتے جناب میں اگر اس زمانے میں ہوتا تو تلواریں سونت لیتا، اور یہ قیامت تک ٹائم ہے، تمہیں مجھے بتاؤ کہ اگر میں صحابی ہوتا تو میرے خلاف بولتے۔ جناب قیامت سے پہلے جواب یہ ہے کہ اگر تو اس وقت ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، کیونکہ شیطانوں کے لیے حضرت علی کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے شیطانوں کو جلایا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ میں جلایا ایسے شیطانوں کو جو اسلام میں گڑبڑی کرتے ہیں، زندہ جلایا ہے۔
मुसन्निफ इब्न अबी शैबा में हदीस 29,003 कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उन बददीनों को, बद मजहबों को, मिर्ज़ा जैसे लानतियों को हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जिंदा आग में जलाया। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, और हज़रत अली रदी अल्लाह तआला के ज़माने में अगर तू होता, तुम्हारे दो टुकड़े करते हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, इसलिए कि वो खवारिज, क्योंकि इसके दिल में सहाबा का बुग़्ज़ है। ये जो वीडियो है कि ट्रेन चलाने वालों सुन लो, इसमें इतनी बदतमीज़ियाँ हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे सहाबा हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, तो इससे आपको मालूम हो जाएगा कि ये सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का बड़ा गुस्ताख है। और खवारिज का पहलू भी यही था कि जब हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की सुलह हुई हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से, तो वहाँ से हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को ये काफिर कहने लगे, आपके खिलाफ हो गए। फिर जंग नहरवान शुरू हो गई। तो यही वो शख्स हैं जो बदतमीज़, बदअखलाक, बददीन थे, जिन्होंने हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को नऊज़ बिल्लाह काफिर कहा। तो अगर तू उस ज़माने में होता तो सहाबी ना होता, बल्कि खारजी होता, जहन्नम का कुत्ता होता। अगर हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में मिर्ज़ा जहलमी होता तो जहन्नम का कुत्ता होता। इसलिए कि मुस्नद अहमद में रिवायत है 19,415 कि जहन्नम के कुत्ते खारजी जो आसमान के साए तले बदतरीन मखलूक हैं। ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बदतरीन मखलूक जहन्नम के कुत्ते ये खारजी हैं। तो अगर उस जमाने में होता तो जहन्नम का कुत्ता खारजी होता। कहते मेरे खिलाफ फिर आप बात न करते, मैं फिर सहाबी होता। भाई तू सहाबी नहीं होता, उस वक्त तू उस वक्त जहन्नम का कुत्ता होता और तुझे ढूंढ के हजरत अली तेरे टुकड़े करते, तुझे मारते हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, तुम्हारी गर्दन उड़ाते। क्योंकि ये बुखारी में हदीस है 6,930 हजरत अली से रिवायत है, खुद पढ़ लो, देख लो कि मिर्जा अगर हजरत अली रदी अल्लाह तआला के ज़माने में होता तो हजरत अली इसका क्या हशर करते, इस जहन्नम के कुत्ते का। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करूं तो अल्लाह की कसम मेरा आसमान से गिरना मुझे इससे ज्यादा पसंद है कि मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधूं। और जब मैं तुमसे वो बात करूं जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है तो बिलाशुबा लड़ाई धोखा है। यकीनन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे आखिर ज़माना में एक ऐसी कौम ज़ाहिर होगी जो नौखैज़ और कम अकल लोगों पर मुश्तमिल होगी। ये कम अकल लोगों पर मुश्तमिल होगी, ऐसे जहलमियों पर मुश्तमिल होगी जो अपने चेले चमाटे बिठा के और ये किस तरह मजाक उड़ाता है सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का, औलिया कराम का। तो ये कम अकल लोगों पर मुश्तमिल होगी। बज़ाहिर वो तमाम मखलूक से बेहतर कलाम कुरान पढ़ेंगे, बड़ा कुरान पढ़ेंगे, मेरी बातें तो कुरान से हदीस हैं, लेकिन उनका ईमान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह तीर शिकार से आर पार हो जाता है। दीन में उनके लिए कुछ नहीं होगा, वो ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से आर पार होता है। तुम उन्हें जहां भी पाओ उन्हें कत्ल कर दो। हज़रत अली फरमाते हैं मिर्जा जहलमी को जहां भी पाओ कत्ल कर दो, क्योंकि अगर उस वक्त वो होता तो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु इसके टुकड़े करते, इस जहन्नम के कुत्ते के टुकड़े करते, इस गुस्ताख के टुकड़े करते। इसलिए कि जितने खारजी जहन्नम के कुत्ते बने वो सहाबा की आपस में सुलह को पसंद नहीं करते थे, इसलिए भी ये सुलह को पसंद नहीं करता। जब अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु उन जगहों में आप हक पर थे, हमने दूसरे सहाबा के बारे में ज़बान दराजी नहीं करनी, तो पहले ये कहता था कि ज़बान नहीं खोलनी, लेकिन अब खोलता है। पहले कहता हम उनको पसंद नहीं करते, वो गंदे लोग हैं जो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान और ख़ास तौर पर हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला के बारे में ज़बानें खोलते। कहता हम खोलेंगे, खोलोगे तो तलवार निकलती। अगर तुम ये ज़बान खोलते तो हज़रत अली की तलवार निकलती। उस ज़माने में अगर होते तो मिर्ज़ा जहलमी के टुकड़े होते, ये कुत्ता जहन्नम का कुत्ता बन जाता अगर हज़रत अली रदी अल्लाह तआला के ज़माने में होता। हज़रत अली फरमाते, नबी अलैहि सलाम फरमाते तुम उन्हें जहां भी याद पाओ उन्हें कत्ल कर दो।
क्योंकि उनका कत्ल क़यामत के दिन उस शख्स के लिए बायस अजर होगा जो उन्हें कत्ल करेगा। तो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे किताल किया, मार मार के ढेर बनाए उन खारजियों के जो बड़ी बड़ी किरातें बढ़ते थे, बड़े बड़े अपने आप को इल्मी किताबी समझते थे, जिन्होंने हजरत अली रदी अल्लाह तआला पर कुफ्र के फतवे लगाए। तो जो अपने आप को किताबी कहता है इस तरह, हम बड़े हैं तो हम तो हमारे तो कोई बाबे नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम, इसी वीडियो में इसने कहा है कि नबी अलैहिस्सलाम के अलावा जितने भी सारे बाबे हैं हम बाबों को नहीं मानते। तो पक्का मालूम हो गया कि इसने हजरत अली को नहीं मानना था, हजरत अमीर मुआविया की सुलह को नहीं मानना था, बिल आखिर इसने खारजी हो जाना था और हजरत अली रदी अल्लाह तआला की तलवार से इसने टुकड़े टुकड़े हो जाना था। धोखा देता है, फ्रॉड करता है। जनाब मेरे खिलाफ जो ट्रेन चलाया वो इसलिए चलाया कि मैं हजरत अली की फजीलत बयान करता हूँ। सुन्नी है जो हजरत अली रदी अल्लाह तआला की फजीलत बयान करते हैं, उनकी शान बयान करते हैं, लेकिन जो हजरत अली को खुदा कहते हैं, हजरत अली की पूजा करते हैं, वो आगे बढ़ाते हैं, उनको हजरत अली रदी अल्लाह तआला जिंदा जलाते हैं। वो हजरत अली को पसंद नहीं है जो सहाबा के खिलाफ भौंकें, गुस्ताखियां करें, उनके तो टुकड़े हजरत अली करते हैं। तो ये सारा इसका मुकदमा झूठ पर मबनी है कि जनाब मेरे खिलाफ ट्रेंड इसलिए चलाया गया, मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ तो फजाइल अली बयान करने लगा। फजाइल अली के मुनकिर नहीं है, हम कहते हैं अली के तरीके पर चलो। अली ने मोहब्बत का दर्स दिया है, प्यार का दर्स दिया है। हजरत अली ने खवारिज से लड़ाई मोल ली कि हमने सुलह करनी है अमीर मुआविया से, लेकिन खवारिज नहीं माने, उनके टुकड़े की हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने। ये हजरत अली की मोहब्बत का तकाजा है कि उनके टुकड़े होंगे, वो जहन्नम के कुत्ते होंगे जो हजरत अली को काफिर कहेंगे। तीसरा ढोंग इसने रचाया है और किस तरह की बदतमीजियां, बद अखलाकियां और कितना बड़ा झूठ कि जनाब ये मेरा कोड है, गोल्डन कोड है कि कोई भी सुन्नी जो है ना वो नहीं होगा, यानी कि जो भी सुन्नी होगा वो नासबी होगा। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये लाखों करोड़ों मुहद्दिसीन फुकहा को इसने नासबी गाली दी। इसने ये बहुत बड़ी गाली है कि तुम अहले बैत के दुश्मन हो। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हम अहले बैत के दुश्मनी मुहिब हैं। लानत तो तुम पर झूठे इंसान, अहले बैत से दुश्मनी तुम कर रहे हो। जो अहले बैत के मुहिब हैं तुम्हें समझाते हैं कि अहले बैत से मोहब्बत करनी है और सहाबा का अदब करना है, तू उन्हें कहता है ये नासबी है। वो अहले बैत के मुहिब है नहीं है, वो लानती शख्स है। उसको तो हज़रत अली ने टुकड़े करने थे जिसने इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करनी थी। हम अहले बैत के मुहिब हैं और सहाबा के अदब करने वाले हैं। दोस्तों समझे इस शैतान को, इस शैतान ने किस तरह लोगों को वर्गलाया हुआ है। जनाब मेरे खिलाफ इसलिए कि मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ और आड़ लेता है अहले बैत की मोहब्बत की और सहाबा के बारे में भौंकता है और अहले सुन्नत के उलमा मुहद्दिसीन अवाम पर भौंकता है। ये भौंकने वाला जहन्नम का कुत्ता है, क्योंकि ये वाज़ेह है कि जहन्नम के कुत्ते खवारिज हैं और इसने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर बहुत बड़ी तोहमत लगाई। क्योंकि अगर उस वक्त होता तो ये पक्का खारजी होता, जहन्नम का कुत्ता होता। उसकी वाज़ेह दलील हमारे पास है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने एज ए लास्ट रिजॉर्ट उनके साथ किताब भी किया जब उन्होंने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू किया। लेकिन आप अहले सुन्नत अहले तशय्युअ दोनों की तारीख की किताबें उठा के देखें, मौला अली ने उनके जनाजे भी खुद पढ़ाए उन खवारिज के जो मौला अली को काफिर कहते थे। ये सवाल जो है ना वो व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा आ रहा है। हजरत अली ने खवारिज के जनाजे पढ़ाए हैं, इसका हवाला चाहिए। भाई इसके वाले की जरूरत ही नहीं है। जो मुनाफिक भी नहीं, जो काफिर भी नहीं, जो मुशरिक भी नहीं, अब वो क्या है? मैंने आपसे सवाल है, बोलो ना, गूंगे क्यों हो गए हो? मुसलमान का जनाजा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? तो बस इसके अंदर इम्प्लाइड है। बोले भाई आपने तारीख की जिक्र किया, तारीख की किताबों में मेरे भाई जवाब दे दिया उसूली, मेरे भाई पानी में मदानी ना मारे। इसने झूठ बोला हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खवारिज के जनाजे पढ़ाए। ये जनाब सुन्नियों की किताबों में लिखा हुआ है, ये शियों की किताबों में लिखा हुआ है। बाद में से पूछा गया कहाँ है? नहीं जी पढ़ाए होंगे, वो मुसलमान होंगे। कहाँ मुसलमान? जिनको अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नम के कुत्ते, उनको तो मुसलमान कह रहा है। सहाबा कराम उनको काफिर कह रहे तो उनको मुसलमान कह रहा है। मुसलमान हो गए, उनके जनाजे हुए हजरत अली ने पढ़ाए होंगे। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो इससे मालूम हो गया कि हजरत अली पर इसने तोहमत लगाई है, ये खारजी है, जहन्नम का कुत्ता है। उस वक्त होता तो अली इसके टुकड़े करते, इसे आग में जलाते, इस जहन्नम के कुत्ते को, क्योंकि इसने नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की तौहीन की, इसलिए ट्रेंड इसके खिलाफ चला।
आइंदा मालूम हो जाएगा। जो इसके पीछे सोचें, गौर करें कि तुम्हारे दिलों में किस तरह नफरत बिठा रहा है। हम तो अपने मानने वालों को, सुनने वालों को, उनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत बिठाते हैं, सहाबा का अदब बिठाते हैं। इस तरह की बातें करके सहाबा के खिलाफ लोगों को उभारता है कि लोग सहाबा को गालियां बकें। लऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे दोस्त हैं कोरिया से, उन्हें मुझे बताया, जाहिद भाई उनका नाम है, कि जब मैंने मिर्जा को सुना इसने जिस तरह ये जुबान इस्तेमाल की अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ, तो मैंने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को नऊज़ बिल्लाह गालियां दी। बाद में अल्लाह ने मुझे अकल दी कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मैंने तौबा की। जिसको सुनने वाले पर इस तरह नऊज़ बिल्लाह इस तरह आगे चले जाते हैं, गालियां बकते हैं, ये तालीम है। हज़रत अली से मोहब्बत करने वाला तो ये तालीम नहीं देता, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला ये तालीम नहीं देता। अहले बैत से मोहब्बत करने वाले तालीम देते हैं कि अहले बैत से मोहब्बत करें, सहाबा का अदब करें। जो इसमें नहीं है ये पक्का जहन्नम का कुत्ता है। इसने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, कब्रों से निकल आए तो हम ये कर देंगे, हम उस वक्त होते तो जनाब सहाबी होते, फिर आप हमारे खिलाफ ना बोलते। भाई उस वक्त तुम होते, तुम जहन्नम के कुत्ते होते, तुम खारजी होते, तुम्हें हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के टुकड़े किए होते, तुम्हें हजरत अली ने वासिले जहन्नम किया होता अगर तुम उस वक्त होते। इसलिए कि तुम्हारे लक्षण ये बता रहे हैं, तुम्हारा किरदार ये बता रहा है कि तुम जहन्नम के कुत्ते और तुम खारजी होते।